سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی میزبانی میں مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا مشترکہ معاہدہ طے پا گیا۔ محمد بن سلمان، رجب طیب اردوان اور شہباز شریف نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے مطابق کسی ایک ملک پر مسلح حملے کو تینوں ممالک کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ تینوں ممالک کے درمیان تصوراتی تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ معاہدے کا مقصد تینوں ممالک کے اجتماعی سلامتی، دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام شعبوں کو مزید وسعت دی جائے گی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں جماعت اسلامی کا احتجاج، نمائش، شارع فیصل، نرسری، ماڈل کالونی، جماعت اسلامی کا دھرنا، نارتھ ناز آباد، کماڑی اور لیاقت آباد میں بھی جماعت اسلامی کا دھرنا۔ تاریخ روڈ پر مظاہرین نے رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑک بند کرنے کی کوشش کی۔ دھرنے کے باعث مختلف علاقوں میں بدترین ٹریفک جام، عوام رل گئے۔ میر رضا علی کی قبر کشائی موقع میڈیکل ایک ملک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان صدر مملکت آصف علی زرداری کا مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، کہا کہ تاریخی معاہدہ مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنائے گا، جبکہ اسی حوالے سے مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کا کردار قابل ستائش ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے مزید کہا کہ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کا کردار قابل ستائش ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا اہم دن ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا پوری دنیا پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ دفاعی معاہدے امت مسلمہ کی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ قرار دیا۔ کہا آج مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین سے دنیا کو ایک پیغام ملا ہے کہ مسلم دنیا متحد ہے۔ تین بڑی معاشی، عسکری اور سیاسی طاقتوں کا یکجا ہونا پوری امت کے لیے خوشخبری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منی نے سعودی اور ترک قیادت کے ساتھ مل کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد اور ترک صدر کو تاریخی اقدام پر مبارکباد۔ کہا اسلامی دنیا کا یہ اسٹریٹجک اور اقتصادی اتحاد وقت کی اہم ضرورت تھا۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی ٹیکس کے خلاف ملکگیر احتجاج، کراچی سمیت پورے ملک میں جماعت اسلامی کے احتجاجی مظاہرے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور میں احتجاج، گلگت بلتستان، اسکردو، مظفر آباد، راولہ کوٹ میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ چاروں صوبوں میں ضلعی سطح پر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، لیوی ٹیکس کے خاتمے کا مطالبہ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں جماعت اسلامی کا احتجاج، نمائش، چرنگی، شارع فیصل، نرسری، ماڈل کالونی میں جماعت اسلامی کا دھرنا، نارتھ ناظم آباد، کماڑی اور لیاقت آباد میں بھی جماعت اسلامی کا دھرنا۔ طارق روڈ پر مظاہرین نے رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑک بند کرنے کی کوشش کی۔ دھرنے کے باعث مختلف علاقوں میں بدترین ٹریفک جام، عوام رل گئے۔ میر رضا علی کی قبر کشائی مؤخر، میڈیکل بورڈ کی تبدیلی پر اہل خانہ کے تحفظات۔
कबर कुशाई के तमाम इंतजाम मुकम्मल थे। बोर्ड की तब्दीली पर कार्रवाई रोक दी गई। मकतूल के वालिद का नए मेडिकल बोर्ड पर अदम एतमाद का इजहार। पहले से तश्कील शुदा 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ही से कबर कुशाई करवाने का मुतालबा। वालिद का कहना है कि पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद की सरबराही में पुराने बोर्ड से कबर कुशाई की इजाज़त होगी। नए बोर्ड से कबर कुशाई की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। मेडिकल बोर्ड के तनाज़े पर अहले खाना के बयानात रिकॉर्ड। कबर कुशाई मुमकिन तौर पर पीर को होगी। मीर रज़ा कत्ल केस में नई तहकीकात टीम की नोटिफिकेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मीर रज़ा केस के वकील जबरान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रात की तारीकी में नई टीम का नोटिफिकेशन जारी किया गया। 8 रोज़ गुजरने के बावजूद तफ्तीशी अफसर ने मुद्दई का बयान रिकॉर्ड नहीं किया। 8 दिन तक गोली का खून नहीं मिला। अदालती हुक्म के बाद फौरी बरामदगी सवालिया निशान है। पहले और नए मेडिकल बोर्ड के अरकान में फ़र्क वाज़ेह किया जाए। गलत फहमी है कि आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत बनेगी। उनकी इस्लामाबाद वाली हुकूमत भी खतरे में है। बाग आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के जलसे में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि हुकूमत गिर चुकी है, अभी तो आधा इलेक्शन रहता है। नून लीग वालों को अलग पता जाएगा। वज़ीर आज़म की नीयत साफ है, लेकिन उनके साथ वाले लोगों की नीयत साफ नहीं। नून लीग की लड़ाई पीपल्स पार्टी से इलेक्शन की नहीं, असल लड़ाई कुछ और है। नून लीग का एक खास हिस्सा वज़ीर आज़म की हर कोशिश को नाकाम बनाता है। अब इतनी धांधली करते हैं कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर में शफाफ इलेक्शन हो और ट्रुथ कमीशन बने। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत को आइंदा पाकिस्तान की तरफ देखने की जुर्रत नहीं होगी। हवेली आज़ाद कश्मीर में नून लीग के जलसे से मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर के तारीखी शफाफ इंतखाबात हुए। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होगी। हवेली का तारीखी जलसा कश्मीरी अवाम की पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का वाज़ेह सबूत है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के नारों के कश्मीरी अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी है। नून लीग की क़यादत हमेशा कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी रही है। वफाकी वज़ीर इमाम मुकाम हवेली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा कि LOC के अवाम ने दिफा वतन के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दे दी हैं। हुकूमत अवामी फलाह बहबूद की मनसूबे तेज़ी से मुकम्मल करेगी। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान से मुस्तकिल दुश्मनी भारत के मफाद में नहीं। RSS चीफ मोहन भागवत भी मोदी पॉलिसी के खिलाफ बोल पड़े। मुंबई में जैनजी से खिताब के दौरान पाक भारत ताल्लुकात पर नया बयानिया दे दिया। भारतीय हुक्मरानों की हठधर्मी के बरक्स हिंदू तंजीम का सरबरा भी पाकिस्तान से बातचीत का कायल निकला। मोहन भागवत ने कहा, जंग के दौरान तो हम हुकूमत के साथ हैं, ताहम हमसायों से मुस्तकिल नफरत के हक में नहीं। पाकिस्तान और चीन से अवामी और सकाफती ताल्लुकात हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान 100 साल पहले तक बड़े सगीर का ही हिस्सा था। तारीख़ी ताल्लुकात भूलना नहीं चाहिए। मुसलसल दुश्मनी के बजाय बातचीत ही मसाइल का देर पा हल है। आम पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों के दुश्मन नहीं, नफरत की असल वजह सियासत है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिज के खिलाफ 2 कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में फितनतुल खवारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्स की चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला मौसर अंदाज में नाकाम बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में फितनतुल खवारिज के 8 दहशतगर्द जहन्नुम व सिज़लदीर में एक और कामयाब कार्रवाई के दौरान फितनतुल खवारिज के मज़ीद दहशतगर्द हलाक।
कराची के इलाके सोहराब गोट में ईदी सेंटर पर डकैती की वारदात, मुलजमान 65 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। तर्जुमान के मुताबिक आज मुलाजमीन को सैलरी देने के लिए बैंक से कैश निकलवाया था। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह मुलजमान ने वारदात की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आईजी पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा ईदी सेंटर गरीबों और लावारिसों का सहारा है, ऐसे इदारे में डकैती नाकाबिल कबूल है। वाक़े की फौरी जांच पड़ताल करके मुलजमान को अंजाम तक पहुंचाया जाए। ईदी सेंटर सोहराब गोट में डकैती में मुलविस मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। वजीर दाखिला से ज़ियाउल हसन लंजार का एडिशनल आईजी कराची को हिदायत, वाक़े का नोटिस लेकर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। कहा ईदी फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाला काबिल एहतराम फलाही इदारा है, ऐसे फलाही इदारे को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पुलिस जदीद तफ्तीशी ज़राए और CCTV फुटेज की मदद से मुलजमान का सुराग लगाए। लूटी गई रकम की जल्द अज जल्द बरामदगी यकीनी बनाई जाए। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में घरेलू तनाज़ा खूनी रंग इख्तियार कर किया। बाप ने बेटे को गोली मार कर कत्ल कर दिया। फायरिंग में मुलविस बाप गिरफ्तार, असलहा बरामद। कराची के इलाके मंगोपीर पख्तूनाबाद में शहरी की खुसूसी की कोशिश, शकील नामी शख्स ने नामालूम वजूहात पर खुद को आग लगाई। आग के सबब शहरी के जिस्म का बालाई हिस्सा मुतासर। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मकामी अफराद ने आग बुझाकर शहरी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। कराची में FIA का क्रैकडाउन, गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज और हंडी हवाला नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयां। गुलशन इकबाल से लाखों डॉलर, सऊदी ईरानी करेंसी, 33 लाख रुपए और दीगर शवाहिद बरामद। एक मुलजिम गिरफ्तार। बहादुराबाद में मुबैना हंडी हवाला नेटवर्क पर छापा, 1 करोड़ रुपए नकद और गैर मुल्की करेंसियां भी बरामद। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट 12वीं जमात आर्ट्स रेगुलर ग्रुप के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तहानात में इकरा हफ़ाज़ गर्ल्स साइंस कॉलेज ब्लॉक B नॉर्थ नाज़िमाबाद की तालिबा अंशरा तौफीक ने A1 ग्रेड के साथ पहली पोजीशन हासिल की है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोकर विलेज कडाफ के तालिब इल्म आकिब रज़ाक ने दूसरी, जबकि तीसरी पोजीशन इकरा हफ़ाज़ गर्ल्स साइंस कॉलेज ब्लॉक B नॉर्थ नाज़िमाबाद की तलबा हुमैरा शाकिर ने हासिल की। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपला ने मुल्क भर के लिए बिजली 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली जून की माहाना एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। इजाफे का इतलाक रबा माह अगस्त के बिलों में किया जाएगा। सोना मुसलसल तीसरे रोज भी महंगा, फी तोला 4.5 लाख की हद अबूर कर गया। फी तोला सोने की कीमत में 5,100 रुपए इजाफा। एक तोला सोने की कीमत 4,54,336 रुपए हो गई। आलमी बाजार में भी सोने की कीमत में $51 का इजाफा। आलमी बाजार में सोने की कीमत $4,319 फी औंस है। और पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड आज इंग्लैंड रवाना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा।